اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید شارف حسین رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوں. آپ کا ہمارے پروگرام میں پھر سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے. خداوند متعال آپ حضرات کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرے. بعد السلام عرض خدمت یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے فقہ کے حوالے سے، یعنی احکام کے حوالے سے، لیکن قبل از احکام ہم قبلہ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کچھ ایسی نصیحتیں کریں کہ جس سے ہم اور ناظرین استفادہ کریں. ہر بار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ کچھ فقہی سوال سے پہلے آئیے کچھ قرآنی سوال کیا جائے قبلہ کی خدمت میں. لہذا بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے اور ساتھ ہی شکر گزار ہیں کہ آپ پھر سے یہاں پر تشریف لائے. بڑی زحمات کر رہے ہیں آپ اور انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اس کا اجر دے. قبلہ قبل اس کے کچھ فقہی سوالات کیے جائیں تاکہ اس سے ناظرین استفادہ کریں. ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ قرآن کی گفتگو ہو، چونکہ ابھی شب قدر کا دور چل رہا ہے. شب قدر 23ویں شب قدر ہمارے ناظرین نے اعمال کیے، شب قدر میں عبادات انجام دی اور بہت ہی زیادہ قرآن پڑھی، قرآن کو پڑھا، انشاءاللہ اس کو سمجھا. اب اسی قرآن کی کچھ نصیحتیں بیان کریے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں درس دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں، کس طریقے سے، یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کا جو ہے کفران نعمت کیا کرتے ہیں، یعنی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یعنی طریقے شکر نعمت کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه ویاسین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد فقد قاله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. پروردگار کی ذات اپنے بندوں کے لیے بہت کریم ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے. یعنی عمومی رحمت نازل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے. اور اسی لیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ سب کچھ ہم کو تبھی حاصل ہوگا جب ہم تقوی کی راہ پر چلنے لگیں، تقوی کے راستے کا انتخاب کر لیں. اور تقوی کا راستہ جب ہم انتخاب کر لیں گے تو اپنے آپ خداوند عالم ہم کو بے انتہا انعامات سے نوازنا شروع کر دے گا. اور اگر تقوی ہماری زندگی میں نہ ہو اور غیر تقوی کے ساتھ اگر ہم بہت اچھے کام کر جائیں سماجی اعتبار سے، معاشرے میں کہیں ہم نے مثلا جو ہے وہ 1 کروڑ روپے تو ہم نے مار دیا ہے کسی کا، لیکن اس سے کیا ہوا، ہم نے 1000 لوگوں کو اس سے روزگار دے دیا ہے، 1000 لوگوں کی نوکریاں لگوا دی ہیں،
तो मौलाना ये मेरा कहाँ से गलत काम है, मैंने तो इतना अच्छा काम किया था। हमने कहा हाँ बिल्कुल तुम्हारी मिसाल उसी चोर की तरह से है कि मैं बहरहाल वाकया इस वक्त बयान नहीं करूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने खुलासतन नतीजा दे दिया था कि इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अगर तुम्हारे पास तक़वा है, अगर तुम अपने माल से तक़सीम करते हो, अगर तुम अपने माल से गरीबों में उनकी गुर्बत को दूर करते हो, उनके फक्र फलाकत और गुर्बत को उनसे दूर करके उनको उनके स्टेटस को ऊपर लाते हो, तो इससे अच्छा कोई अमल नहीं है। लेकिन अगर 420 से कमा के और बनाया घर हमने सब 420 और इधर करके लिहाजा मिन फज़्ल रब्बी, तो क्या हम बेवकूफ बनाना चाहते हैं खुदावंद आलम को कि बनाया तो हमने शैतानी इखराजात और शैतानी रविश और रास्ते पर चल करके। तो वाकई शैतान भी अगर किसी से बेवकूफ बन सकता हो तो ऐसे ही लोगों से बेवकूफ बन जाता है। ये और बात है कि ये इंसान अपनी नजर में सोचता है कि हमने बेवकूफ बना दिया है, लेकिन यही ऐसा आदमी होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब खुदा के यहाँ गए तो कहा तुमने हमारे लिए काम किया ही नहीं था, तुमने जो माल कमाया था वो हराम जरिए से कमाया था। जब हराम जरिए से माल कमाया था तो हमारी मर्जी तुमको कब हासिल है, तुमको हमारा कब तुम्हें जो है वो एतमाद हासिल हुआ है। तुमने तो पहले ही से हमारा एतमाद खो दिया था, तुमने तो हमारी बंदगी से अपने आप को पहले ही बाहर कर लिया था, तुमने तो पहले ही से शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लिया था, तुमने तो हमको कब उलूहियत के दर्जे पे माना था। अगर हमको अल्लाह मानते होते, अगर हमको माबूद मानते होते तो ये सोचते कि जो मैं काम कर रहा हूं ये मेरे माबूद को बुरा लगता है, ये जो काम कर रहा हूं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, जो मैं काम करता हूं इससे अल्लाह राजी नहीं है, तो खुद ब खुद वो काम करते, चाहे 10 पैसे कमाते होते जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था, वो काम करते होते जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी होता है, चाहे जिंदगी भर फलाका ज़दा रहते और गुर्बत ज़दा रहते, गरीबी में जिंदगी गुजार लेते, लेकिन हराम काम के जरिए से बहुत बड़ी बिल्डिंग न बनाते। तो मैंने ये कहा कि खुदा करीम है, अपने करम दस्तरखान करम पर खुदावंद आलम अपने बंदों को उमूमी दावत देना चाहता है। सुभान अल्लाह। और शायद यही वजह है कि वो कहता है लइन शकरतुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरह बकरा की आयत है कि खुदावंद आलम ये कह रहा है कि अगर तुमने हमारे इजाजत जो हमने दी है तुमको सांस लेने की, अगर तुम उसका शुक्रिया अदा करो तो हम तुम्हारे लिए सांस लेने के मौके ज्यादा फराहम कर देंगे। उसमें तुम अल्लाह की जब तस्बीह और तकदीस करना शुरू कर दोगे तो हम और ज्यादा मौके फराहम कर देंगे कि तुम हमारा शुक्रिया अदा कर सको, हमारी तकदीस कर सको, हमारी तहमीद यानी हमारा हम्द और सना हमारी ज्यादा बजा ला सको। यही अल्लाह यही कहना चाहता है कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारे हर काम में बरकत दे देंगे। जब तुम्हारे काम में बरकत हो जाएगी तो वो काम वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हो हर काम में। और जब अल्लाह बरकत दे देगा यानी अपनी रहमत को महसूस कर रहा है अपने इस बंदे से, किससे? जिसने शुक्रिया अदा किया है, जाके खेतों पे काम करता है, कहता है कुर्बतन इल्लाह, खुदाया तुमने बहुत अच्छा मौका मुझे फराहम कर दिया है। उसने ये नहीं कहा कि खुदाया मुझे कहां फंसा दिया इस खेत में लाके, बल्कि कहते खुदाया तूने ये मौका फराहम कर दिया कि मैं तेरे इस नजर लुत्फ से मैं हलाल काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, और हलाल काम के जरिए मैं रिस्क हलाल कमा रहा हूं। तो वहां वो शुक्रिया अदा कर रहा है कि रिस्क हलाल कमाने के लिए खेतों में मुझे मौका मिल गया काम करने का। खुदा ने भी कहा कि तूने चूंकि शुक्रिया अदा कर दिया है लिहाजा तुझको भी मैं इससे बेहतर काम दे दूंगा और इससे ज्यादा बरकत दे दूंगा, तुझे बरकतों से मालामाल कर दूंगा। ये है बड़े लोगों का फैसला ही इसी तरह होता है कि जब उनकी बात मान ली जाती है तो वो सारा खजाना उसके फेवर में कर देता है, सारा खजाना उसे दे देता है। लेकिन जब उसको कोई नाराज करता है, कोई ऐसी बात कर देता है, अपने यहाँ भी आम लोगों में बड़े लोगों की यहाँ बातें होती हैं कि जब कोई बॉस को नाराज कर देता है तो बॉस इनाम नहीं दिया करता है, बल्कि अगर
नाराज हो जाए तो कभी हो सकता है कि एक आध दिन की तनख्वाह कट जाए और उससे वो उस पर नजर रखने लगे, उसके काम में सख्ती करना शुरू कर दे। जो अभी तक नरमी बरत रहा था, जो उसे अच्छे से काम ले रहा था, उसके हर काम में जगह जगह पर वो रोड़े अटका सकता है और उसको आगे तरक्की नहीं दे सकता है। लेकिन वही बॉस, वही काम करवाने वाला, वही कार फरमा जो काम लेता है, जब उसकी मर्जी के मुताबिक कोई काम करना शुरू कर देता है, बजाय 6 घंटे के 6 घंटे में उसको इतना काम करके देना था, लेकिन काम ज्यादा करके दे दिया है। एक हफ्ता ये मालिक देखता है कि क्या कहने हैं इस आदमी के, ये वक्त को जाया नहीं करता है, वक्त को बर्बाद नहीं करता है, कम वक्त में बहुत सारा काम करता है। तो वही राजी होकर के कोई ऐसा इंतजाम कर देता है कि 1 महीने के बाद जब वो घर जाता है तो बहुत सारा पैकेज और सामान उसको दे दिया जाता है कि तुमने कंपनी का बहुत बड़ा फायदा करवाया है, तुमने हमारा शेयर बढ़वा दिया है, तुमने हमारा माल में इजाफा करवा दिया है, लिहाजा हम भी तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे बीवी बच्चों की भी आसूदगी के लिए ऐसा काम कर देंगे कि तुम और काम में तुमको और मजीद काम में तुम्हारा दिल लगने लगे और उधर इतनी बरकत हो जाए इस पैसे से कि तनख्वाह तो तनख्वाह है, ओवर टाइम अलग से मिलने लगे। यानी ये अलबत्ता मैंने कहा कि ये मिसाल बिला तशबीह मैं खुदा की मिसाल आम आदमियों से नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात को पहुंचाने के लिए मिसाल दी ही इसीलिए जाती है कि मैं अपने बच्चों को ये समझाना चाहता हूं कि जैसे आज के हमारे बॉस और ऑफिसर्स, जब उनके लिए भी अच्छा काम कर दो तो वो भी खुश होकर के ईदी दे देते हैं, वो भी खुश होकर के ओवर टाइम दे दिया करते हैं। खुदावंद आलम भी हमको कुछ इस तरीके से, हमारे दिल को छूता हुआ जुमला है ये कि लइन शकरतुम, जो हमने तुमको दिया है, हमने तुम्हें रिफा फराहम किया है, हमने जो तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ लाजमी असबाब फराहम कर दिए हैं, अगर तुम उन असबाब में खुदा का शुक्रिया अदा करने लगोगे तो हमारी रहमत और हमारा करम और हमारा लुत्फ, जिसके तुम मुस्तहिक नहीं थे, जिसके तुम हकदार नहीं थे, लेकिन लुत्फ मेरा शामिल हाल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में इतनी बरकत पैदा हो जाएगी कि तुमको मतलब मुसीबत कोई नहीं आएगी, बच्चा कोई मरीज नहीं होगा, स्कूल में कोई मुश्किल नहीं आएगी, तुम्हारे ऑफिस में कोई मुश्किल नहीं आएगी, तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। अल्लाह जब किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है वो ये कहता है कि लइन शकरतुम, अगर तुमने शुक्रिया अदा किया। और शायद यही वजह है कि मासूम की हदीस में भी आया है कि मन लम यशकुरिल खालिक लम यशकुरिल्लाह, जो खालिक का, जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करेगा, खालिक का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। चाहता तो यह कह देता अल्लाह, या चाहते तो रसूल खुदा इस तरीके से हमारी हिदायत कर सकते थे कि मन लम यशकुरिल्लाह लम यशकुरिल मखलूक, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो मखलूक का भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। लेकिन यहां पर देखिए ज़ईफ़ सी हमारी बात को, यानी हमारे जहन को तहका दिया गया है, हमको समझाने की कोशिश की गई है कि लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जो मखलूक का, जो मखलूक खुदा का, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है, वो खुदावंद आलम का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि हम खुदावंद आलम का हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहें और बंदगान खुदा का भी अगर थोड़ा सा भी काम किया है तो जरूर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब हमें ये आदत बन जाएगी तो हम शुक्रिया अदा करेंगे बंदगान खुदा का, अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन वो इबादत बनता चला जाएगा और वो अल्लाह का शुक्रिया हो जाएगा। मैं यही अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों के लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, खुदावंद आलम अपने कलाम में जो अरबी अदब जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो जोर डाल रहा है कलाम में, ताकीद कर रहा है कि ताकि कलाम जो है वो ज्यादा, मेरे कलाम जो है दिलचस्प हो जाए और ज्यादा से ज्यादा उस पर तवज्जो की जाए कि लइन शकरतुम क्या लअज़ीदन्नकुम, जरूर हम ज्यादा कर देंगे। यानी खुदावंद आलम सादिकुल वाद है, सादिकुल इकरार है, वो जो इकरार करता है उसका बिल्कुल सही जो है वो एग्जैक्ट उसके सिलसिले में फैसला करता है और उसी तरीके से जो चीज कहता है उसके वो अपने इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वायदे में वायदा खिलाफी
نہیں کرتا ہے آپ سے جو وعدہ کیا ہے. اب یہاں پر کیا اس مقام پر کیا وعدہ ہوا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم تمہارے اندر اپنے کرم سے کمالات پیدا کرتے چلے جائیں گے، ہم تمہارے اندر کی جو اندر برائیاں تھی تمہارے دل میں ان برائیوں کو تم سے دور کرتے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے، ہم تم کو بھی اچھا بندہ بنا دیں گے اور تمہارے تمام اعمال کو پاکیزہ بنا کر اس میں برکت بھی دے دیں گے. اور اس کے بعد اگر ایسا نہ کیا، ان عذابی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا، اللہ نے جو نعمت دی ہے، سانس لینے آنے اور جانے کی نعمت دی ہے، ہاتھوں کو اٹھا سکنے پر قدرت حاصل ہے اور اسی طریقے سے زبان کو بولنے پر قدرت حاصل ہے، لیکن اگر وہ ہم سے اس کو چھین لے تو وہ ایسے ہی نہیں چھینتا. چھیننے کا معیار میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر ہم شکریہ نہیں ادا کریں گے اس کی نعمتوں پر تو وہ ہم سے نعمتوں کو چھینے گا. یہ تو واقعاً پھر بھی خدا کا لطف و کرم ہے کہ اتنا ہم صبح سے لے کے شام تک خداوند عالم کہ شکایت بندگان خدا سے کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم ہم کو طرح دیتا ہے، ہم کو پھر معاف کر دیتا ہے، اگلا راستہ دکھا دیتا ہے. تو اے کاش کے طرف متوجہ ہو جاتے کہ یہ خدا جو رحیم ہے، جو اپنے بندوں پر لطیف اور کریم ہے، وہ کیوں جب کار خیر تھا، جب شکریہ ادا کیا تھا تو فوراً اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا تھا، اور جب اس نے شکریہ نہیں ادا کیا تو فوراً اللہ نے نعمتوں کو نہیں چھینا بلکہ تھوڑا سا موقع دے دیا کہ شاید اس کو موقع دے دیا جائے تو یہ متوجہ ہو جائے اور یہ بھی ہمارا شکر گزار بندہ ہو جائے، یہ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دے اور اپنے خالق کا بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دے. جب یہ کمال اور آہستہ آہستہ جب یہ بندہ ان باتوں کا عادی ہو جاتا ہے، یہ کمال ان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے لطف کرم سے ان کے درجات میں اضافہ کر دیتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سبحان اللہ، جزاکم اللہ قبلہ. نہایت ہی عمدہ گفتگو، عمدہ بیان، قابل استفادہ تھا یہ بیان، اور انشاءاللہ ہم اور ہمارے ناظرین ضرور استفادہ کریں گے. بہترین مطالب آپ نے بیان کیے قرآن کے سلسلے سے، اور جہاں تک کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان کوئی بھی کام کرے وہ خالصتاً للہ کرے، یعنی اللہ کے لیے صرف کرے. اور جیسا کہ آپ نے وہ بات بیان کی شروعات میں کہ انسان سوچتا ہے کہ جو ہے اچھائی تو کر رہا ہے لیکن وہ اچھائی بھی کر رہا ہے کسی برائی سے، یعنی کہ پہلے اس نے پیسہ جو ہے دوسروں کو ہڑپا غصب کیا، اس کے بعد اسی کو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے. جیسا کہ بہت اچھی بات لگی آپ کی. یہی تو ہوا تھا اوائل اسلام میں بھی کہ جب مولا کائنات علیہ السلام جب آیت ولایت آئی تھی، یہ سب انہی کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے. یہ شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جب مولا کائنات کی آیت ولایت آئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا کام کریں گے کہ ہماری شان میں بھی آیت نازل ہو. کیا کیا تھا علی نے؟ رکوع کے عالم میں سائل کو انگوٹھی دے دی تھی، آیت ولایت نازل ہو گئی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات کے بعد کچھ لوگوں نے انگوٹھیاں دیں، سائل کو بلا بلا کر دی گئی انگوٹھیاں، لیکن آیت نہ آئی. آیت کیوں آتی؟ کیونکہ اللہ کو ہر وہ اچھا کام بھی نہیں پسند ہے کہ جو بغض اہل بیت میں کیا جائے. یعنی جو بھی چاہے جتنا اچھا کام ہو، اگر وہ اہل بیت کے بغض میں کیا جا رہا ہے، اگر وہ اللہ کی مخالفت میں کیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ کام لائق استفادہ نہیں ہے، بلکہ وہ کام بہت ہی غلط کام ہے. چاہے وہ کتنا بھی اچھا کام ہو، اگر جس اچھے کام سے بھی اگر اہل بیت راضی نہیں ہے تو وہ کام آپ کا ادھورا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہے اگر اہل بیت راضی نہیں ہے. اسی لیے ہر اعمال کا دار و مدار ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہے، اور خدا اندرم سے دعا ہے کہ ہمیں اصل مولا کائنات کا حقیقی چاہنے والوں میں اللہ شمار کرے ہمیں. بہرحال قبلہ، آئیے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. بس 2 سوال ہیں، زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے. ہمارا آج کا سوال وضو سے متعلق ہے کہ وضو میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انجام دینا واجب ہے ہمارے لیے، یعنی وضو میں کیا کیا چیزیں کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اچھا سوال ہے. ہم ناظرین کی خدمت میں اس سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں کہ وضو بہرحال سب لوگ جانتے ہیں کہ وضو طہارت حاصل کرنے کے لیے حدث اصغر سے
पाकीज़गी के लिए वुजू किया जाता है। जी। अब हदस असगर वो चीजें जिनमें खाली वुजू करना पड़ता है, पेशाब पाखाना अगर ये निकल गया है तो इंसान जाके धो लेगा। बज़ाहिर वो ताहिर हो गया है, लेकिन अपने रूह को ताहिर करने के लिए, अपने रूह को ताहिर करने के लिए अब क्या है, वो वुजू करेगा। इसको कहते हैं हदस असगर के बाद ये तहारत है। तहारत आबिया या माइया, पानी से तहारत की जा रही यानी है। ये वो मकाम है कि जिसके लिए वजू वाजिब है। हाँ, जिसके लिए वजू। अभी अर्ज कर रहा हूं कि अब क्या हुआ, वाजिब मकदार वजू की, जी ज़ाहिरन आपका यही सवाल था। जी वजू की वाजिब मकदार, यानी वो मकदार जो वजू में वाजिब है। जी। करें इसमें ये बिल्कुल दबाज़द खास आम है कि 3 चुल्लू पानी से बस वजू के वजूब में 3 चुल्लू पानी दरकार है। अब देखें हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले हम पानी को दाएं हाथ से लेंगे, जी ज़र्फ से, टैब से, टोटियों से, जैसे भी लोटे से, और इसको लेकर के चुल्लू में पानी, और उसको पेशानी के ऊपर जहां से बाल उगता है जी वहां से बाल उगने के जई से नीचे उसको पानी को डालेंगे ऐसे, और पूरा चेहरा धोएंगे। अब देखिए, आप लोग देख लें कि जहां तक ये मेरे बीच वाली उंगली और ये अंगूठा जा रहा है, जी बस इतनी ही मकदार में वाजिब है। अब अगर कोई इंसान सोचता है कि कहीं कोई हिस्सा बाकी न रह गया हो तो थोड़ा सा दाईं तरफ, और ऐसे ही थोड़ा सा बाईं तरफ, ताकि यकीन हासिल हो जाए कि इसका पूरा चेहरा धुल गया है। जी। अब रहा मसला, एक यहां पर शुबहा आता है कि मौलाना साहब ये बताइए कि दाढ़ी बहुत घनी है मेरी, तो क्या जो है वो दाढ़ी के अंदर पानी का जाना जरूरी है? तो मेरे अजीजों, दाढ़ी के अंदर पानी का जाना जरूरी नहीं है, ऊपर ही से ऐसे पानी को ले जाना जरूरी है। लंबाई में कहा, पेशानी में जहां से बाल उगते हैं वहां से लेकर के ये ठुड्डी तक, और चौड़ाई में ये जो मैंने बालिश निकाला है, बीच की उंगली और ये अंगूठा, इसको ऐसे पानी को करके और फिर ये इसको लेके चले गए, और जो हिस्सा बचने का एहतमाल हो तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हाथ को कर लेंगे उसकी नमी से, जो उसकी नमी बरकरार है, और ये चेहरा धुल गया। जी। अब उसके बाद क्या है, फिर हम वैसे ही पानी को निकालेंगे जैसे अभी अर्ज किया था, और उसको बाएं हाथ में लिया और बाएं हाथ में लेके दाएं हाथ की कोहनी में पानी डाला और लेके चले आए उंगलियों की नोक तक, यानी उंगलियों के आखिरी सिरे तक। अब उसको आराम से धो लिया, यानी अब पानी पहुंचाया। हाँ, ये पानी पहुंच गया हमारा, इसमें ऊपर से नीचे जाना चाहिए, ऐसे ऊपर से नीचे। कहीं ऐसा ना हो कि आदमी ऐसे करने लगे, यानी हमारा हाथ सब लोग देख ही रहे होंगे, ऐसे यानी उल्टा, यानी नीचे से ऊपर नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे जाएगा, और ये उंगलियों के सिरे तक के पानी को पहुंचाया जाएगा। ये हो गया, दायां हाथ हमारा धुल गया। उसके बाद हमने पानी लिया दाएं हाथ में, उन्हीं तरीकों से, टैप से, नलकों से या लोटे से, जैसे भी हुआ, पानी लेकर के हमने बाएं हाथ की कोहनी से डालना शुरू किया। कोहनी सब लोग समझ गए होंगे, कोहनी से डालना शुरू किया और लेके आए नीचे तक लेके आए, पूरा हाथ हमने ऐसे ही धो लिया। अब इसमें भी जो है क्या है, मुलाजा फरमाए नाज़रीन, कि हम ऊपर से हाथ को नीचे ले जाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये बायां हाथ भी धुल जाएगा। माफ कीजिएगा, अगर मसलन हमारे हाथ में अंगूठी है तो क्या उसका निकालना जरूरी है वजू के वक्त? निकालना जरूरी नहीं, लेकिन अगर घुमाने से पानी की तरी वहां तक के पहुंच जाती है तो निकालना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जो है, अगर घुमाने से, उंगली को रिंग के घुमाने से अगर पानी न जा पाए तो हाँ, ये रिंग्स जो पहने हुए जो अंगूठियां, इसको उतारे, और उतारने के बाद फिर बाकायदा तरी को उंगलियों तक ले जाए। ये दायां हाथ भी धुल गया, बायां हाथ भी धुल गया। इस तरीके से 3 चुल्लू पानी का इस्तेमाल। अब आप मुझसे पूछेंगे, आगे बताता हूं कि आपने क्या किया। तकरीबन 4
अंगुल मिली हुई उंगलियां, जी ये सर के पेशानी के ऊपर वाला हिस्सा जो अगला हिस्सा है, जी इससे बस एक उंगली लंबाई में ऐसे खींचेंगे, ये जो है क्या है, सर का मसा हो जाएगा। ये सारी चीजें नियत के साथ डिपेंडेंट हैं, नियत के साथ मुमकिन, अगर नियत ना हो तो फिर सही नहीं हो। बहरहाल मसा हो गया। दाएं पैर को दाएं हाथ से दाएं पैर, दाएं हाथ में तरी बची है उससे दाएं पैर का यानी उंगलियों से लेकर के वो पैर में जो बुलंदी होती है और थोड़ा सा और ऊपर यानी जहां से जोड़ होता है वहां तक के खींच के लाएंगे, ताकि बिल्कुल यकीन हो जाए कि हमने पैर का बसा कर लिया है। और इसी तरीके से जो बाएं पैर के बाएं हाथ में जो तरी बची है उस तरी से इसी तरीके से बाएं पैर की उंगलियों के जिसका जाए नोक से लेकर के और इसको भी उसी जोड़ तक मफसल तक लेके आएंगे, ज्वाइंट तक, ताकि यकीन हासिल हो जाए कि हाँ हमारे पैर का मसा हो गया है। ये हमारा वाजिब वुजू हो गया। अब अगर आप कोई सवाल है तो फरमाइए। माफ कीजिए, नियत किस वक्त करेंगे वुजू की? हाँ, जब हम पानी जो है वो डालने लगते हैं चेहरे पे ऊपर पेशानी के पास से, हाँ तभी हम जो है वो नियत करेंगे कि वुजू करता हूँ कुर्बतन अल्लाह, सबसे अच्छा तरीका कुर्बतन अल्लाह। और उसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो आप फरमाइए। जी शुक्रगुजार है आपके, जितना जहमत फरमाया आपने, बस ज्यादा देर और जहमत नहीं देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, निहायत ही उम्दा बयान, काबिल इस्तेफादा रहा। दोनों तरीके के मौज़ूआत आपने बेहतरीन तरीके से बयान किया। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन भी इस्तेफादा करेंगे और मैंने भी इससे बहुत इस्तेफादा किया और इंशाअल्लाह इस पर गौर करेंगे। और आखिर में आप हजरात से अपने नाज़रीन से यही इल्तिजा करते हैं, यही दुआ करते हैं कि ये माह रहमत है, माह मग़फ़िरत है, माह इस्तिग़फ़ार है। जितना हो सके एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि इस महीने से अफजल कोई महीना नहीं है, ये महीनों का सरदार है, माह रमजान है। जितना हो सके उन सबके लिए दुआ की जाए। बिलखुसूस हमारे मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हसनैन करारवी साहब जो इस वक्त काफी अलील हैं, आप मोमिनीन से और तमाम मोमिनात से भी गुजारिश है कि मौलाना साहब के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। चूंकि रवायत में मिलता है कि एक इंसान की दुआ दूसरे इंसान के लिए बहुत मुफीद साबित होती है, जरूर काबिल कबूल दुआ होती है। चूंकि यही सवाल जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था, खुदा ने कहा जनाब मूसा से, मूसा जाओ और अपनी उम्मत से कह दो कि जब भी दुआ किया करें तो पाक दिल और साफ जबान से क्या करें। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यार मेरे बारे इलाहा है, मेरे खुदा, इंसान पाक जबान और साफ दिल कहां से लाएगा? इंसान तो गुनाहों का मुजस्समा है, उससे तो गलती हो ही जाती है, खतावार है इंसान, बना ही निस्यान से है, तो अब इंसान पाक जबान कहां से लाए? तो परवरदिगार ने आवाज दी, ऐ मूसा, एक इंसान की जबान दूसरे इंसान के लिए बहुत ज्यादा पाक हुआ करती है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुआ करेगा तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। तो बस आपसे ही गुजारिश है कि आप एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें इस माह मग़फ़िरत में, इस माह इस्तिग़फ़ार में, ताकि खुदावंद आलम हम सब के गुनाह और हम सब के तमाम नेक हाजात को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।